Yes, now it has started. Okay, see, it happens like this. It happens. Our 5-10 minutes. I am talking. I forgot to record it. Okay, anyway. So Monday onwards, if you are really serious, first 10-15 minutes, I will be asking questions. Everybody has to be prepared for first chapter. Are you all ready? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I want to hear from everyone. Yes, ma'am. अच्छा चलो एक बात बताओ, 1 मार्क 2 मार्क का पूछेंगे, बड़ा सवाल ही पूछ लेते हैं. इफ आई से द फर्स्ट टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स पूछने से हर एक को एक ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है. एवरीबडी इज सपोज टू गिव वन आई लास्ट अभिषेक 1 ऑब्जेक्टिव, Lakshmi Kamar 1, Lakshmi Jaste 1, you Raju tell 1 point, so that you all should be prepared for the whole topic perfect. First chapter. Are you ready? Yes, ma'am. Okay, first Yes, part. ma'am. Because what is happening, I am giving question paper, your sir is putting it online, you are writing online, sending it to mail. I am not getting any paper, neither I know how far you understood, what is your understanding about that topic, how much you have scored. If I see the paper and correct them, at least I'll get an idea whether you are written, you have understood what is that marks you're going to score. At least I can analyze, evaluate about you, where you stand. Now this is the problem. Then now when you are, be serious, sincere when you are answering also. Don't keep the textbook there looking in the book, because I cannot see your face. You should not cheat yourself. Is it clear? Be sincere. If you really want, it is not for me, it is for you. Are you ready? Are you Yes, ma'am. ready? Yes, ma'am. Only Lakshmi is ready. Yes, ma'am. Don't keep the book besides you. Open the book and seeing the book points you read and you tell me. I do not want that. Even if you do that now, I will come to know. At least that much experience we have got. Because I know each one, your capacity, your language, how well you know. So don't cheat yourself. You think you are giving examination, practical you think, and it's one way also. See, you are learning to speak also. No? When you are speaking also, without saying, online you are and you are talking, means it's as good as you are talking to some public. Think somebody is before you and you are answering them. Like that. So what will happen? You will have little confidence. Stage fear also will go like. So slowly, you would develop yourself in this fashion. Okay? And for that, you have to learn. See, many students I have seen online, they are immediately interacting, answering. Questions are asked, they are answering. Is it clear? Shall we start from Monday? Some 10-15 minutes revision of one topic, and the next part of the lesson will continue with. Now we are in 5th module. We have only total 9 modules. We are already in the 5th module. 5th module, yes, we have started with what is organizing. What is organizing means what? Can anybody tell me? Organizing means? Organizing means what? You should learn to put, I know you understand what is organizing, but you are not able to put it in your language. What is organizing? What is organizing means? See now, example only you take. Okay, now planning the things in a system. So there are so many resources. Very good. Yes. By every individual. So you are having so many resources, but then you have to put it properly. Now I ask you to organize a program. I tell you as a team, organize some program for your college function. Now what you will do? First you will plan, then you have to organize everything. What is that program you are going to? What hour? 1 घंटे का है. 1 घंटे में क्या क्या करना है? अच्छा, उसके लिए अभिषेक तुम ये करो. क्या करना है? सिटिंग अरेंजमेंट तुम करो. युवराज तुम माइक सिस्टम वगैरह का सब अरेंजमेंट करो. लक्ष्मी वेलकमिंग गेस्ट को करो. मिताली तुम केटरिंग का, स्नैक्स वगैरह का. लक्ष्मी, अनदर लक्ष्मी, वोट ऑफ थैंक्स. रोहन, see that everything is in a disciplined manner. सबको बराबर बिठाना, किसी को दंगा करने नहीं. देखो इसको बोलते क्या, एक कुछ सी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एक चीज चलाना है तो उसको सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज करना पड़ता है. बहुत सारी चीजें हैं. यू आर एस्टैब्लिशिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, द मटेरियल, द मैन, द मशीन के साथ. हर कोई चीज अपने जगह पर सिस्टमेटिकली अरेंज होता है, तब क्या होता है, तभी जाके ऑर्गेनाइजेशन का गोल या ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश होता है. सही कि नहीं? Yes, ma'am. Yes. So this is very simple. Only you should know what is the meaning of that and how to use that language properly. So it is establishing the
रिलेशनशिप among वेरियस फैक्टर्स प्रेजेंट इन द एंटरप्राइज. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत सारी चीजें हैं, उसको सही तरीके से एस्टेब्लिश करना है, ऑर्गेनाइज करना है. सो तुम्हारा क्या होता है, प्रॉपरली काम चलता है उस ऑर्गेनाइजेशन में. इफ दिस ऑर्गेनाइजेशन में व्हाट आर दोज रिसोर्सेज विच यू हैव टू ऑर्गेनाइज, what are those resources in an enterprise you have to organize? Men are there, machine are there, material is there, money is there, finance is required. So all these things, if you arrange systematically, if you are utilizing this very systematically, when you are able to establish the relationship of the enterprise with all these resources, factors, then what will happen? Then you will be able to accomplish the goal you have set in a systematic way. Your specific object is fulfilled. Then we studied what is the definition. Clear? I'll not repeat the same things. Yesterday also I was there. The only thing is I do not know, something went wrong. I clicked business studies, but it went to in some that accountancy class. It was recorded in the accountancy class, it seems. Thereafter I asked you that accountancy sir to check. He said, madam, everything is recorded, but it is gone to accountancy. I don't know how it has happened, what went wrong. Okay. Then we studied what is the importance. Now we understood what is organizing. Is it organizing clear to you? Organizing clear hai, Yuvraj and all? Rohan? Yes, ma'am. हाँ, आंसर करो, यस बोलो, नो बोलो, हमको भी अच्छा लगता है, हमको अदरवाइज व्हाट वी फील, आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ. There should be interaction. If not, you are answering at least say yes ma'am, no ma'am, I have not understood ma'am, something like that. No? Yuvraj is there online or gone back? Yuvraj. So Abhishek, Lakshmi, Mithali, Lakshmi. Okay. Yes, ma'am. So now after definition we studied the importance. Now importance ko other name kya hai? What is other name for importance? Significance also it is called. What is the importance of organizing? If everything is organized properly, what happens? What is it? Why it should be done? What is the importance of organizing? It will benefits of specialization. Why everything should be organized? Because what will happen if everything is allocated, जिसको जो काम करना है उसको सही तरीके से उसी को वो काम दोगे. अकाउंट वाले को अकाउंट का काम, मार्केटिंग वाले को मार्केटिंग का काम, रिसर्च वाले को रिसर्च का काम, प्रोडक्शन वाले को प्रोडक्शन का काम, सेल्स वाले को. अगर ये सारे तरीके से सब allocation of jobs is been done in a systematic manner, what will happen? That person, that employees, that enterprise will work in a very efficient way. The efficiency will increase, correct? Then there will be, because those employees will keep doing the work repeatedly again and again, they are doing that work regularly on daily basis, then they'll become more experts, more specialized. That's why benefits of specialization is there. Second is clarity in working relationship. When there is an organization is established, when everything is systematically clearly defined, the line of communication is clear, who has to do what, who has to do what. So when you know who has specified you that work, from whom you have got those orders to do, and accordingly you are doing and reporting, then what will happen? This will remove the confusion, misunderstanding, ambiguity. Then what will happen? There will be clarity in working also. Correct? Is it correct? These all things already we have finished. I am again repeating for you. At least say yes, no. Yes, ma'am. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ऑप्टिमम मीन्स जो भी रिसोर्सेज है आपके पास उसको ज्यादा से ज्यादा अगर इस्तेमाल करते हो, यूटिलाइज करते हो, तो क्या होता है? इफ यू आर यूजिंग द मटेरियल, द फाइनेंस, द ह्यूमन रिसोर्स, एवरीथिंग विच इज प्रॉपरली एलोकेटेड इन अ प्रॉपर वे, देन दिस विल अवॉइड व्हाट? वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, वेस्टेज ऑफ टाइम. देन व्हाट? ओवरलैपिंग. जो किसने किया है वही काम बार बार रिपीट नहीं होगा. So this will be, it will ensure that everything is systematically set, everybody is doing his own work. So naturally there will be no wastage and you will use the optimum utilization of resources karoge. Fourth point was adaptation to change. We all know organization, in a business organization, whenever we have to adjust with the environment. Suddenly today I had planned something, we had thought that we'll do everything like this in this system, tomorrow something changes. Will you say no, हमने कल इसे डिसाइड किया था, अब कल मेरे को नहीं होगा? Will you say like that? No. Every organization is supposed to adjust according to the changing environment. अगर अचानक से कल कुछ हो गया, ठीक है, कल सामान कहीं भेजना था और वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं आया, तो फिर तुम क्या करोगे? अल्टरनेटिव अरेंजमेंट. वो नहीं है कुछ और तरीके से. तो कोई भी बदलाव अगर आता है अचानक से,
So the business organization is supposed to do what? It has to adopt to the changes. It should allow the organization. So what will happen? It will allow the organizational structure to be suitable. ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? वो अलाउ करता है कि हमको अगर किसी तरीके से कोई बदलाव आता है तो उसको सही तरीके से एडजस्ट करने के लिए. सो व्हाट विल हैपन? देयर विल बी इंटर रिलेशनशिप अमंग द मैनेजरल लेवल्स में क्या होगा? सुटेबली मॉडिफाई कर सकते हैं. अगर हमारे इंटरप्राइज में कुछ चेंजेस आते हैं तो हम अपने आप में थोड़े बदलाव करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं. हेलो, somebody is saying something? Then the next is effective administration. Administration क्या है? चलाना. So अगर सब कुछ सही तरीके से ऑर्गेनाइज है, अगर if I tell you are the second year senior students, you organize something, if you are organizing in a systematic में क्या होता है? अगर तुम्हारा लीडर या तुम्हारी टीम सही तरीके से काम कर रही है, सब कुछ हर किसी को अलग अलग काम बराबर दिया है, अपना अपना ड्यूटीज क्या है, तुम्हारा रोल क्या है, अगर ये सब सही तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ है तो क्या होता है? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है. सो व्हाट विल हैपन? अगर ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स क्लियर डिस्क्रिप्शन. If everything is organized systematically, there will be clear description of jobs related to their duties. Abhishek, what is your duty? Yuvraj, what is your duty? Everything is organized. So what will happen? Everybody knows that this is my work, this is my duty, I am supposed to do that. So there will be discipline, there will be no confusion, there will be no misunderstanding. Then the management enterprise becomes, for the management of the enterprise, it becomes very easy to bring effective administration. So सही तरीके से organization को enterprise को चला सकते हैं. अगर everything is organized properly, there will be proper effective administration. Then development of personals. So this organizing, if everything is organized systematically, it will develop the personals. जो भी वहाँ पर काम करे, जो managers and all, they will develop themselves. So what will happen? Effective delegation. I am a manager, below me who all are the subordinates. What is that load of work after me? What I should subordinate this to one supervisor, to one clerk. ऐसे मेरे नीचे जो भी है उनको मैं मेरा बर्डन को रिड्यूस कर सकती हूँ, मैं उसको डेलीगेट कर सकती हूँ मेरे सबऑर्डिनेट्स को. तब क्या होता है? आई विल अलाउ द मैनेजर्स टू रिड्यूस द एंटरप्राइज विल अलाउ द मैनेजर्स टू रिड्यूस देयर बर्डन वर्कलोड बाय असाइनिंग देम टू हिज सबऑर्डिनेट्स. तो क्या होता है? हर कोई डेवलप हो जाता है. ऐसे मेरे सबऑर्डिनेट्स को मैं अगर मेरा क्या काम को असाइन करती हूँ या डेलीगेट करती हूँ तो मेरे साथ वो भी पर्सनल्स डेवलप हो जाते हैं. इज इट क्लियर? देन लास्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजिंग, दैट इज एक्सपांशन एंड ग्रोथ. अगर किसी भी एंटरप्राइज का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर ऑर्गेनाइजिंग, दैट इज एवरीथिंग इज सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज, naturally that company can grow, that enterprise will grow, and if they are doing very well, their growth will be diversified. आज एक दुकान है, दो कंपनी है, तीन कंपनी है, चार कंपनी है, एक्सपांड कर रहे, ग्रो कर रहे है कि नहीं? जब सब कुछ सही तरीके से चल रहा है तो naturally you will start doing far well, you will be benefited, you are profited, and naturally you will see that there will be diversification in your business, है कि नहीं? अभी रिलायंस वालों को देखो, क्या कहाँ शुरू हुआ था रिलायंस का कंपनी का काम, आज किस किस में है? अभी वो फूडमार्ट भी आ गया उनका, है कि नहीं? फुटवेयर भी है, फूडमार्ट भी है, क्या क्या नहीं है उनके. सो देयर विल बी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस, एक्सपांशन. दिस विल हेल्प टू टेक अप न्यू चैलेंजेस. अगर मैं अच्छे से काम कर रही हूँ, मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है, मैं एक्सपांड कर रही हूँ, तो मुझे बहुत शौक आता है. क्या होता है कि मैं और अच्छा करना है. आई विल बी रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस. These are the importance of organizing. Is it clear? Hello? Hello? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. हाँ, चुपचाप है, कोई भी कुछ आवाज नहीं, चूचा नहीं, कुछ नहीं. कैसे समझ में आएगा? बच्चे लोग चुप बैठे हैं, बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ? Is it clear? Yes, ma'am. हाँ, अभी नेक्स्ट वी स्टडीड वाज ऑर्गेनाइजिंग में प्रोसेस क्या है, स्टेप्स क्या है कि नहीं? पहले क्या होता है? हाँ, तुम अगर Yes, ma'am. एजुकेशन का प्रोसेस क्या है तुम्हारा? फर्स्ट तुम कहाँ जाते हो? नर्सरी जाते हो. उसके बाद क्या Yes, होता है? ma'am. नेक्स्ट स्टेप अपर केजी, फिर लोअर Yes, ma'am. केजी में फर्स्ट से फिफ्थ, फिर सिक्स्थ से एट्थ, फिर 9 से 10th, देन 11 12, फिर डिग्री, है ना? कैसे एक स्टेप्स होता है, प्रोसेस होता है, वैसे ऑर्गेनाइजिंग का ma'am. भी एक स्टेप्स होते हैं, प्रोसेस होता है. तो क्या है प्रोसेस? तो उसका एक चार्ट दिखाया. फर्स्ट कोई भी चीज, यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड डिवीजन वर्क.
आइडेंटिफिकेशन, हर कोई काम को फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाई एंड डिवाइड द वर्क. तो क्या है प्रोसेस ऑर्गेनाइजिंग? तो आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करके डिवीजन ऑफ वर्क करना है. सो द होल वर्क हैज टू बी डिवाइडेड. पहला क्या काम है? अच्छा ये काम है, अच्छा ठीक है, ये प्रोग्राम हमको ऑर्गेनाइज करना है. अच्छा अभी इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे? चलो हमारी टीम कितनी है? 10 लोगों की है. अभी इतना बड़ा प्रोग्राम है, अभी कितने लोग आने वाले हैं, अभी कितना घंटे का है, उसको हम कैसे डिवाइड करेंगे? हमने आइडेंटिफाई कर लिया क्या काम है, अभी हमको क्या करना है, उसको डिवीजन करना है. अभिषेक को ये काम देंगे, उसको ये काम देंगे, आरोहन को देंगे, युवराज को, लक्ष्मी. Then division of work. So first process is, then what will happen? The manager will do all these activities, will divide all this work to everybody. Yes or no? Then what will happen? They can avoid duplication, they can avoid overlapping. जो युवराज को बोला है वही काम मैं रोहन को भी बोलूंगी तो चलेगा क्या? नहीं. तो ऑर्गेनाइज अगर आप सभी तरीके से करते हो, आइडेंटिफाई करके अपना काम, तो देयर विल बी नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड तुम्हारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और प्रॉपरली अच्छी तरीके से सब कुछ काम हो जाएगा. So this is the first step. Second, departmentalization. Now there is a big organization, big enterprise. तो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं कि नहीं? अलग अलग होते हैं कि नहीं डिपार्टमेंट्स? Yes, ma'am. हाँ, तो जब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, तो डिपार्टमेंटलाइजेशन रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एक्टिविटीज. चलो मार्केटिंग का काम ये एक करेंगे, सेल्स का ये एक, परचेस का ये एक, फाइनेंस का ये एक, ऐसे अलग अलग काम. तो अभी ये डिपार्टमेंटलाइजेशन किस बेसिस पर होता है? बेसिस इट इज डिटरमिन ऑन द बेसिस इट क्यों चाहिए? इट हेल्प्स इन स्पेशलाइजेशन. अभी किस चीज के ऊपर? अभी डिपार्टमेंट्स अलग अलग हो, कितने बड़े बड़े कंपनीज में देखो, HR डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फिनांस डिपार्टमेंट है ना, हाँ, रिसर्च डिपार्टमेंट, हाँ, कितने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. तो ये लोग कैसे करते हैं काम? फिर ये सब स्पेशलाइजेशन की वजह से उनको बहुत सही तरीके से आसान होता है. तो इसके लिए अभी आप ये डिपार्टमेंटलाइजेशन को कैसे बाइफरकेट करोगे, कैसे कैटेगराइज करोगे? तो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस. अभी डिपार्टमेंट्स कैसे बनेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस. क्या फंक्शन करते हैं उस हिसाब से डिपार्टमेंट को अलग अलग करना है. ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस मीन्स अभी आपको मालूम है परचेज, तो परचेज का एक डिपार्टमेंट, खरीदी करना है सब कुछ, परचेजिंग जो काम करने के लिए, जो बनाना है, प्रोड्यूस करना है, उसके लिए क्या क्या परचेज, तो परचेज डिपार्टमेंट. अभी बनने के बाद बेचना है तो उसके लिए अलग डिपार्टमेंट. क्या फंक्शन कर रहे हैं? बेचना, सेल्स डिपार्टमेंट. अच्छा अभी फाइनेंस, क्या करना है? जो कुछ भी काम करने के लिए पैसा चाहिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट. तो इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? द डिपार्टमेंट इज बेस्ड ऑन फंक्शंस. On the basis of functions, the departments are bifurcated or categorized. Is it clear? Is it clear? Hello. Yes, ma'am. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो एक है डिपार्टमेंटलाइजेशन. हमको पता चला डिपार्टमेंटलाइजेशन मीन्स क्या है? ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज. एक एक अलग अलग डिपार्टमेंट का एक एक डिपार्टमेंट, कामों का एक एक डिपार्टमेंट हो गया. फिर अभी ये डिपार्टमेंट को तुम टाइप्स कैटेगराइज कैसे करोगे? कौन सा डिपार्टमेंट क्या है? अभी कैसे उसका पहचान होगा? बेसिस ऑफ फंक्शन. जो काम फंक्शन वो करता है उस हिसाब से वो डिपार्टमेंट का नाम. मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग मीन्स क्या करते हैं, उनका फंक्शन क्या है? जो प्रोडक्ट बनाया है उसको लोगों के बीच में जाना है, एडवर्टाइज करना है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, उसकी अच्छा ही बोलना है, कितना मस्त है, क्या अच्छा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी लाइफ स्पैन कैसी है, वो कितना कम पैसे में है. मार्केटिंग ऐसे ही करते हैं ना. तो उस फंक्शन की वजह से उस डिपार्टमेंट को मार्केटिंग. तो फिनांस, अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट में पैसा चाहिए काम करने के लिए, तो फाइनेंस का एक अलग डिपार्टमेंट. HR, नौकरी के लिए जितने लोग हैं, ऑल दोज एम्प्लॉइज दे कम अंडर HR डिपार्टमेंट. उनको रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग है ना, सब कुछ करना वो HR डिपार्टमेंट का काम. सो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस दिस डिपार्टमेंट्स आर कैटेगराइज्ड. सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट. अभी दूसरा कैटेगरी क्या है डिपार्टमेंटलाइजेशन में? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट. उसको पहचानोगे कैसे? प्रोडक्ट किस तरह का प्रोडक्ट है, तो क्या है प्रोडक्ट? सो जो मैन्युफैक्चर्ड है, जो भी मैन्युफैक्चर्ड है उस प्रोडक्ट के हिसाब से डिपार्टमेंट बनेगा. फूड, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स. अभी खाने का चीज है तो फूड प्रोडक्ट्स का अलग डिपार्टमेंट में जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट. एक है फूड का, दूसरा कॉस्मेटिक्स का, तीसरा क्लोथिंग का, है कि नहीं? पहले किस बेसिस पे किया? क्या काम करते? फंक्शंस के बेसिस पे. दूसरा क्या प्रोडक्ट बनाते? उस बेसिस के हिसाब से डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है
है कि नहीं? बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में, बड़े बड़े कंपनीज में जाते हो, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते कि नहीं? एक जगह पर कॉस्मेटिक्स ही मिलेगा आपको, एक जगह सिर्फ क्लोथिंग मिलेगा, एक जगह पर सिर्फ मेडिसिन मिलेगा, होता है कि नहीं ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स? यस और नो? देखा है कि नहीं? हेलो हेलो, Yes, ma'am. हैव यू सीन और नो? क्या सब Yes, मिक्स ma'am. करके रखते हैं? अभी No, तुम ma'am. सादा एक बड़े बड़े सुपर मॉल्स में वगैरह जाते हो, मॉल्स में भी प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग सेक्शंस होते हैं कि नहीं? Yes, ma'am. हाँ, वैसे बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स एक तो क्या फंक्शन करता है उस हिसाब से डिपार्टमेंट बनाते हैं, दूसरा प्रोडक्ट्स के हिसाब से बनाते हैं, तीसरा टेरिटरी के हिसाब से, नॉर्थ का है, ईस्ट का है, वेस्ट का है। आप लोग बोलते हो अभी जैसे लाइक सर्टन थिंग्स आर कैशू नट, वेयर डू यू गेट दिस? ओ ऑलवेज कहाँ? महाराष्ट्र में भी मिलेगा, सावंतवाड़ी साइड में, या तुमको गोवा में मिलेगा, है कि नहीं? हाँ, फिर और कौन सा? शॉल एंड ऑल, स्वेटर, शॉल, ये कौन सा एरिया मिलेगा? ईस्टर्न। ईस्टर्न में मीन्स आसाम की तरफ वगैरह भी बहुत मिलता है ना? आसाम की तरफ भी मिलेगा, जम्मू कश्मीर की तरफ भी मिलेगा, एंड इट डिपेंड्स ऑन द टेरिटरी ऑल्सो. सो डिपार्टमेंट्स आर बेस्ड, इट रेफर्स टू that is grouping of the activities. First is on the basis of function. What is that function you do? So accordingly purchase, sales, marketing, HR, ऐसे अलग अलग department on the basis of function. Second, on the basis of products. What type of product is it? Food product, cosmetic product, electrical product, what product? On the basis of that. Third is on the basis of territory. So that is department on the basis of territory. North, south, east, west. These are the different departmentalized. Second step or process. Third is assignment of duties. अभी असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज क्या है ऑर्गेनाइजिंग में? तीसरा स्टेप क्या है? अभी डिपार्टमेंट्स का हो गया, तीसरा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज मीन्स किसको क्या काम का देना है. इट इज वेरी नेसेसरी टू असाइन. सिर्फ हम लोग ऑर्गेनाइज करके यूज नहीं है. इट इज नॉट नेसेसरी टू असाइन द वर्क टू द एम्प्लॉइज, ओके, अकॉर्डिंग टू दैट. तो व्हेन वी आर असाइनिंग, सिर्फ काम देने से नहीं चलता. काम किसको क्या देना है, किसका क्या स्किल है, क्या किसमें एक्सपर्ट कौन है, उस हिसाब से आपको उनको काम असाइन करना है. अकाउंट वाले को तुम मार्केटिंग का काम दोगे तो होगा क्या उससे? कैन यू डू दैट? No, ma'am. हाँ, तो मार्केटिंग वाले को या अकाउंट वाले को बोलोगे मार्केटिंग करके आओ, मार्केटिंग वाले को हिसाब लिखो बोलोगे तो नहीं चलता. सो इट हैज टू बी असाइनमेंट ऑफ द ड्यूटीज. जिसको क्या काम देना है उसके उसके स्किल एंड कॉम्पिटेंसी के हिसाब से देना है. तो क्या होता है, क्यों? तो सब कुछ इफेक्टिवली होता है, एफिशिएंटली होता है. कोई भी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में सारा काम एकदम सही तरीके से होना है. तो जिसको जो काम देना है अपने अपने एफिशिएंसी हिसाब से दोगे, देन एवरीथिंग विल बी वेरी इफेक्टिवली डन एंड देयर विल बी अ बैलेंस इन द कंपनी. द नेचर ऑफ द जॉब दैट यू आर गिविंग टू एवरीबडी, देन द एबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉई इज आल्सो सीन and accordingly there will be a balance in the company. So that is the reason assignment of duties is also very important. This is the third step. And the last step is establishment of reporting situation. अभी मैंने बोला अभिषेक एंड टीम ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम, हो गया. मैंने असाइन कर दिया, बोल दिया, हो गया. अभी अभिषेक क्या करेगा? करेगा नहीं करेगा, वो करता है नहीं करता है, क्या करता है, कुछ चाहिए कि नहीं, रिपोर्टिंग वगैरह. अभिषेक अभी टीम लीडर है, वो क्या करेगा? यस, मुझे एलोकेशन ऑफ वर्क मुझे बताया है, तो सिर्फ मैं सिर्फ उसको काम देने से नहीं चलेगा. ही हैज टू सी व्हाट दैट एवरी इंडिविजुअल शुड डू देयर ओन वर्क. सबको मालूम रहना है. अभी अभिषेक को किसने काम दिया? मैडम, मैंने उसको बोला काम, आई हैव डेलीगेटेड हिम द वर्क, सो ही इज माय सबऑर्डिनेट. व्हाट अभिषेक विल डू? ही विल इन टर्न एलोकेट, लक्ष्मी यू डू दिस, अभी युवराज यू डू. सो सिर्फ बोलने से नहीं, वो कर रहे कि नहीं वो भी देखना है. अभी आप युवराज को मालूम रहना उसको किसने काम बताया, एंड बाद में इसको भी मालूम रहना चाहिए अभिषेक को कि मैंने उनको काम बताया है, उन सब ने सही तरीके से करना है, उसका रिपोर्टिंग वापस मैडम को करना है. So only allocation of work is of no use. Then they should know to whom you are supposed to report also, who is the authority. समझ में आ रहा है? So that is why you are accountable, you are responsible. किसी के लिए, हाँ मुझे ये काम दिया है मैडम, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज टीम लीडर, आई एम सपोज टू रिपोर्ट इट टू मैडम. अगर कल को सही तरीके से नहीं जाता देन मैं अकाउंटेबल हूँ, उसकी जिम्मेदारी मेरी है. कल को ऊंच नीच हो गया तो कौन उसका जवाब देगा? अभिषेक को देना पड़ेगा. फिर
उन टर्न मुझे मैडम को देना पड़ेगा, है कि नहीं? सो एस्टैब्लिशिंग एंड रिपोर्टिंग सिचुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया? अगर ये सब ऐसे करते हो तो ये हायरार्कियल स्ट्रक्चर, अभी टॉप मैनेजमेंट, अभी समझो मैं मैनेजर हूँ, मेरे नीचे अभिषेक इज अ सुपरवाइजर, अंडर हिम अदर आर द कोऑर्डिनेट ma'am. वर्कर्स, तो क्या होगा? ये हायरार्की मेंटेन होती है। कंपनी क्यों अच्छी तरीके से चलती है? इसके लिए एक एमडी या चेयरमैन होता है, उसके नीचे एक मैनेजर होता है, मैनेजर के नीचे एक सुपरवाइजर होता है, सुपरवाइजर के नीचे एक क्लर्क होता है, क्लर्क के नीचे एक प्यून होता है, होते हैं कि नहीं? ये हायरार्की जो होती है ना, रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, ये हायरार्की मेंटेन होती है, स्ट्रक्चर मेंटेन होती है। क्यों? अगर ऐसे कुछ है तो कोऑर्डिनेशन अच्छे से होता है। अगर हर कोई अपने आप को बॉस समझने लगे, मैं ही चेयरमैन हूँ, मैं ही एमडी हूँ, मैं ही मैनेजर, फिर नहीं चलता। ये हायरार्की सिस्टम क्यों मैनेज किया है? क्योंकि हर कोई किसी का ऑर्डर लेना है, किसी को रिपोर्ट करना है, यस और नो? इसीलिए इन वेरियस डिपार्टमेंट्स दिस सिस्टम विल प्रॉपरली वर्क। आर यू गेटिंग मी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सुनाई दे रहा है? समझ में आया? ये सारे Yes, ma'am. स्टेप्स हो गए खत्म, ठीक है? सो यस्टरडे मैंने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताया, और स्ट्रक्चर मीन्स व्हाट? एक कंपनी का ढांचा बोलो, स्ट्रक्चर कैसे होता है? डिपेंड्स, किसी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर स्मॉल है, किसी का बिग है, कोई एक प्रोडक्ट बनाता है, कोई 4 प्रोडक्ट बनाता है, होता है कि नहीं? यस और नो? So organizational structure can be detained or what is defined as what? A framework. हाँ, तुम्हारा स्कूल का स्ट्रक्चर क्या है, वैसे एक कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, तो ये समझना। इट इज लाइक अ फ्रेमवर्क। एक फ्रेमवर्क क्या होता है? वहां पर काम कर रहे कौन? मैनेजरल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म। क्या होता है उस स्ट्रक्चर में? लोग और मटेरियल एंड मनी, हर कोई एक दूसरे के साथ काम चल रहा है, वहां पर परफॉर्मेंस कर रहा है। तो क्या है? इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल, द वर्क एंड द रिसोर्सेज, nothing else. Organization structure is what? It is a framework. What is that framework? In that framework, who is there? There is a specific relationship between, उस framework के अंदर कौन कौन काम कर रहा है? लोग है, पैसा है, मटेरियल है, रिसोर्सेज है, हर कोई उस framework के अंदर काम कर रहा है, उसको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या करता है वो? इट अलाउज को रिलेशन, हर किसी का एक दूसरे के साथ को रिलेशन, रिश्ता कैसे एस्टेब्लिश होता है, कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, ह्यूमन का, फिनांस का, मटेरियल का। दिस विल अलाउ द एंटरप्राइज टू एस्टेब्लिश और अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव और द डिजायर्ड गोल। अब इसमें 2 टाइप के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। कितने टाइप के? 2। पहला था एक फंक्शनल, दूसरा है डिविजनल। फंक्शनल क्या होता है? फंक्शनल दैट इज ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब्स। अभी एक सिमिलर ने एक ही तरीके का काम एक जगह पर अगर हो रहा है तो उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है। उसको एक हेड होता है, ठीक है, एमडी एक हेड होता है, और उसके नीचे एक टाइप का प्रोडक्ट है, उसके लिए अलग अलग डिविजन्स होते हैं या डिपार्टमेंट्स होते हैं। अभी एक एमडी है, एक ही टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें क्या होगा? उस एक टाइप के प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट। इज इट क्लियर? इफ इट इफ इट इज एग्जाम्पल, इफ इट इज अ ट्रैवल्स कंपनी है, मेरा एक ट्रैवल्स कंपनी है, मेरे पास 3 स्टाफ है, मैं अभी एक को क्या बोलती हूँ? तू सारे मेरे ट्रैवल बिजनेस के लिए बस ट्रेन फ्लाइट का बुकिंग करना है, ये तेरी जिम्मेदारी। दूसरे को क्या बोलती हूँ मैं? तेरी जिम्मेदारी क्या है? हर किसी के पास जाके एडवर्टाइजमेंट करना है, मार्केटिंग करना है मेरे ट्रैवल्स के बारे में। तीसरा, मैं एमडी हूँ। First is my functional structure. I am the MD, and under me there are different departments who are working. Only one type of business I have, one type of product I have. I am doing travels business. तो एक को मैं बताती हूँ बुकिंग का, टिकट का, बस, फ्लाइट, ट्रेन, सबका तू देखना है। अभी दूसरे को बोलती हूँ, समझो युवराज को मैं बोलती हूँ तू मार्केटिंग देखना है, जाके सब जगह बताना है हमारा बिजनेस ऐसा है, हमारा टूर्स एंड ट्रेवल्स इतना अच्छा है, ये फैसिलिटी देता है, वो। तीसरे को क्या बोलती हूँ मैं? पैसे ऑनलाइन कलेक्शन करना है, कौन कौन बुकिंग कर रहा है, सारे पैसे जमा कराना है। समझ में आ रहे हैं? आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ बोलो,
नहीं तो मेरे को क्या समझेगा, Yes, मैं ma'am. ही बोल रही हूँ, मेरे को ही समझ रहा है। ठीक है, समझ में आया? फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब बताया, इट इज अ फ्रेमवर्क। और फ्रेमवर्क में क्या होता है, रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है, एस्टेब्लिश हो रहा है, किसके साथ? अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, लोगों के साथ, प्रोडक्ट्स के मीन्स मटेरियल के साथ, मशीनरी के साथ, फाइनेंस के साथ, हर कोई वहां पर वही तो है वो फ्रेम के अंदर, है कि नहीं, वो स्ट्रक्चर के अंदर। तो क्यों होता है? ताकि हर किसी का रिलेशन, को रिलेशन अच्छा हो, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, ताकि हम लोगों के बीच, ह्यूमन के बीच, रिसोर्सेज के बीच, मशीनरी के बीच, ये सारा बिजनेस अच्छे से चले, ताकि हमारा जो उद्देश्य है बिजनेस चलाने का, ऑब्जेक्टिव, हमारा गोल जो है वो हम फुलफिल कर सके। इज इट क्लियर? दिस इज द मीनिंग आई टोल्ड। देन there are types of organizational structure. There are two types of organizational structures which is adopted by every organization with the nature, किस तरह का बिजनेस है उस हिसाब से वो स्ट्रक्चर रहता है। अभी एक्टिविटीज भी उस तरह से परफॉर्म होते हैं। पहला है फंक्शनल। फंक्शनल क्या होता है? जहां पर एक सिमिलर, एक ही तरीके के प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक ही तरीके के क्या नेचर ऑफ जॉब्स आर, एक ही तरीके के काम होते हैं, तो वहां पर दिस फंक्शंस आर हैविंग ओनली सेपरेट डिपार्टमेंट्स इतने होते हैं। एक एमडी होता है, अभी ट्रैवल्स का बिजनेस करें, उसके नीचे क्या होगा? एचआर, लोगों को नौकरी पर लिया एचआर के लिए। दूसरा मार्केटिंग हो रहा है उसके बारे में। तीसरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केट की स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, क्या क्या करना है। चौथा उसके लिए क्या चाहिए नहीं चाहिए, परचेज या फाइनेंसेस, अलग अलग। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. हाँ, Yes, दिस इज ma'am. वेरी सिंपल। अभी इसका भी ये जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है उसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज क्या? स्पेशलाइजेशन। क्यों स्पेशलाइजेशन? क्योंकि एक ही तरीके के जॉब है, और दिस ऑल द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। इसमें स्पेशलाइजेशन होता है लोगों का। क्यों? क्योंकि दे आर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक फंक्शन। एक ही तरीके का जॉब है, एक ही तरीके का नेचर है, तो वो बार बार वही करके वो बंदा स्पेशलाइज हो जाते हैं उसमें। सो फर्स्ट एडवांटेज इज स्पेशलाइजेशन होता है। दूसरा इजी कोऑर्डिनेशन, क्योंकि एक ही तरीके के काम होते हैं तो कोऑर्डिनेशन, इट प्रमोट्स कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सही तरीके से हो सकता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज सिमिलर टास्क हैव बीन कैरिड आउट, क्योंकि एक ही तरह का काम है, एक ही तरह का नेचर ऑफ काम है, तो सही तरीके से सब चलता है, तो इजी कोऑर्डिनेशन भी होता है। तीसरा इफेक्टिव ट्रेनिंग, ट्रेनिंग भी सही होता है। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉइज इज ईजियर बिकॉज इट फोकसेस ऑन अ लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स। क्योंकि 10 तरीके का काम नहीं है, एक ही नेचर का काम है, तो उनको ट्रेनिंग बिनिंग देना भी इजी पड़ता है, इफेक्टिव ट्रेनिंग होता है। देन इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी भी, क्योंकि इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। क्यों? बिकॉज इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज प्रॉफिट, क्योंकि ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्या होता है? इफेक्टिवली काम होता है, इफेक्टिवली काम होने से बिजनेस का प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। देन मिनिमम डुप्लीकेशन, क्योंकि नेचर ऑफ वर्क एक तरीका का होता है, तो इट लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन, वही वही रिपीट कोई नहीं करता। डुप्लीकेशन, जो काम कर रहा है वही काम दूसरा कर रहा है, ऐसे नहीं होता, क्योंकि एफर्ट्स रिजल्ट इन इकोनॉमिक्स एंड द स्केल एंड कॉस्ट इज लोअर। तो यहाँ पर क्या होता है? मिनिमम डुप्लीकेशन होता है, रिपीटेड डुप्लीकेशन, जो काम किसी ने किया वही कोई रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि एक ही टाइप का नेचर का बिजनेस है, हर किसी का अपना काम बटा हुआ है, उनको मालूम है क्या करना है, तो डुप्लीकेशन नहीं होता। देयर आर नो चांसेस। दिस इज द एडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। व्हाट इज द डिसएडवांटेज? अभी उसका उल्टा बोलना है। जब अभी एक आपने बोला है हर एक कॉइन का 2 साइड्स होते, एवरी इंसान, एवरी पर्सन इज गॉट 2 sides, one is good, one is bad, everybody has that. So like that everything has got good and bad, plus minus होता ही है। तो एडवांटेज देखा, अभी डिसएडवांटेज। सो दिस डिपार्टमेंट्स बिकम स्पेशलाइज्ड इन देयर ओन वे। अभी इस बंदे को और इस लोगों को क्या होता है? एक ही तरीके का काम आता है, उनको अगर मैं निकाल के दूसरे डिपार्टमेंट में डालूं, कुछ दूसरी जगह पर डालूं, अगर मैं कॉस्मेटिक्स में काम कर रही हूँ, मैं फूड प्रोडक्ट वाले काम में डाल दूं, आई एम इन कॉस्मेटिक्स के एचआर डिपार्टमेंट में, मगर मुझे निकाल के फूड प्रोडक्ट्स के एचआर में डालोगे तो आएगा क्या? मुझे No, ma'am. आएगा क्या? नहीं, एचआर ही है, मगर यहाँ मैं कॉस्मेटिक्स का एचआर में थी। अभी वो कौन सा है? फूड प्रोडक्ट्स का एचआर में जा रही हूँ, तो उधर का क्या है फूड प्रोडक्ट्स के बारे में मुझे मालूम ही नहीं, तो कैसे आएगा? सो व्हाट हैपेंस हियर? डिसएडवांटेज इज व्हाट? द डिपार्टमेंट बिकम्स that is the departments become specialized in their own ways only, अपना एक ही काम में एक्सपर्ट होते, दूसरा अगर उठा के कहीं डालो इनको कुछ नहीं आएगा। डिसएडवांटेज ये है।
दूसरा, व्हेन डिपार्टमेंट्स बिकम टू लार्ज, अगर समझो गलती से डिपार्टमेंट बड़ा हो गया, बहुत सारा काम आ गया, वो लोग कोऑर्डिनेशन कर सकते क्या? नहीं, क्योंकि काम अगर एक्सपांड होता है, बहुत ज्यादा काम होता है, एक्सपांड होगा, लार्ज हो जाएगा, तो इनका कोऑर्डिनेशन डिक्रीज होता है, फिर इनको कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते सही तरीके से। तीसरा, when the organizational goal is not achieved, when the organizational goal is not achieved, then it becomes very difficult for only one department to be made accountable. Okay, so क्या होता है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का गोल, हमने जो गोल डिसाइड किया है कि मुझे ये टारगेट कंप्लीट, अगर मेरा वो टारगेट कंप्लीट नहीं होता तो मैं इसमें से किसको जिम्मेदार ठहराऊंगी? whom can I? So when the organizational goal is not achieved, then it becomes very difficult to make any one department accountable. किसी एक को हम जिम्मेदार नहीं कर सकते, डिफिकल्ट होता है। किसको करोगे जिम्मेदार? तुमने किया नहीं इसलिए हमारा गोल कंप्लीट नहीं हुआ। फिर मैं बोलूँगी रिसर्च वालों के, तुमने सही तरीके से रिसर्च नहीं किया इसलिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल कंप्लीट नहीं हुआ। फिर मैं HR वालों को बोली, तुम सही तरीके से काम नहीं किए इसलिए हमारा, ऐसे बोल सकते हो क्या? हम किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। वी कैन